नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन है और सीधे आपको लिए चलते हैं। संसद की कार्यवाही चल रही है। We have to create a scientific spirit, the spirit of questioning, the spirit of inquiry, the spirit of doubt. That is the spirit of science which I hope will be created by this excitement. So, along with Chandrayaan 3, let us not forget Chandrayaan 1. Chandrayaan 1 was launched in 2008. And I have no hesitation in saying that the first announcement of Chandrayaan was by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on the 15th of August in 2003. After 2003, you had Chandrayaan 1 in 2008, you had Chandrayaan 2 in 2019, and you have Chandrayaan 3 in 2023. What does it mean? It means there is continuity in governance. If a Prime Minister refuses to acknowledge, तो वहीं आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही लगातार चल रही है और महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने कहा है, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हूं। भारत की महिलाओं ने कभी शिकायत नहीं की। स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। लाखों महिलाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी लाए थे। बिल में SC, ST, OBC को भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी ने बिल पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस बिल के साथ खड़ी हूं। स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हैं। लाखों महिलाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। ये बिल राजीव गांधी लाए थे। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल पर इस समय सदन में चर्चा चल रही है। लोकसभा में इस बिल पर 7 घंटे तय किए गए हैं और 7 घंटे में इस बिल पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो जानकारी मिल रही है, सोनिया गांधी ने इस बिल पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि लाखों महिलाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये बिल राजीव गांधी लाए थे। एक बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी। Poet known all over the world, Bidrohi Kavi Nazrul said,
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেকটার করিয়াছে নারী, অর্ধেকটার নর। The women work very hard in every field. They should be respected. And none other than Vishwakobi Rabindranath Thakur. What did he say? He said, "Jodi rakho parshe, sankote sangshaye, sammati dao jodi krotino brote." Like just now my sister here, Kanimoji, was saying, we want equal opportunity, we want equal respect, we want to participate in nation building as equals, not by looking down upon us, because we are equals and we can perform provided we get support in education, support in healthcare system. What is the budgetary allocation for women's health? This government should tell me and the whole house that what is the extra budgetary allocation for reproductive health of women in the country. The women bear children, men don't. So women should require this extra budgetary allocation for their reproductive health. Do these first before bringing the bill. You have tabled the bill. This bill should have come in 2014. When you came, if you are so much interested for the welfare of the women, not before the election like a gimmick pulling out a rabbit from your hat. Do I believe this bill? Do I believe this house? Do I believe that government here? Or I believe their IT cell chief here, the IT cell chief, he is quoted as saying in 2010, Sonia ji holding the nation to ransom just to fulfill her agenda to see women reservation bill through. Will her MP stand up to her? Again he says, again in 2010 he says, by pushing the women reservation bill, Congress has created another constituency for itself. This one transcends caste and religion. He again says, when we should be talking and moving away from reservation of all kinds, we have a new wave demanding reservation women. This is the IT cell chief of the Bharatiya Janata Party. You can have it. You again have this. We in certain states have reservation for women in the local bodies. Has it helped the cause of women? He questions whether the women in the local bodies has helped the administration. This is, yes, and he's always being rewarded. He's always maligning everybody in the opposition. So this I can lay it on the table. This is from the IT cell chief of Bharatiya Janata Party. They have always been looking down on women. So we are equals. Women are equals. We actually are better than men, I should say, in many respects, because we look after the home, the hearth, and children. So this bill has been first brought in 2009, but it couldn't have passed at that time for whatever reason. But my leader, Mamata Banerjee, has implemented 40% in the state of West Bengal. From All India Trinamool Congress, we are representing here. So I would like to quote the famous boxer Cassius Clay, who said, "Catch me if you can. Catch me if you can, all of the political parties here. Catch Mamata Banerjee and AITC and make it 40%, not 33%, because we in Trinamool Congress get that much respect of being here in great number and also in the state assembly, where important portfolios like the health, like the law, like the women's empowerment, everything is, industry is being held by ladies. The home is in the hand of a lady. So why don't you respect women and give them their dues is the question. And the rest of the country shows so much of atrocity against women, where the NCRB's report says Kolkata registered the least number of rape cases. तो देखिए, चर्चा चल रही है महिला आरक्षण बिल पर। लोकसभा में लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी ने जो बात रखी उसमें सबसे अहम ये था कि वो इस बिल के साथ खड़ी हैं। हमारे सहयोगी दीपक चौबे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सोनिया गांधी ने जो बात कही उससे अब इस बिल को लेकर के संभावनाएं क्या की? ये बिल तो अब पास होता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस सोनिया गांधी बोल रही थी तो बिल को लाया जाए, उस पर उन्होंने साफ कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सारी रुकावटों को दूर करने
और इसमें देखिए सबसे बड़ा जो उन्होंने ये बयान दिया जब सोनिया गांधी बोल रही थी कि बिल में एससी, एसटी और ओबीसी को भी शामिल किया जाए और जातीय जनगणना करके इसको तुरंत लाया जाए। हालांकि अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद जब अधीर रंजन चौधरी बोलने उठे तब उससे पहले अगर बात की जाए तो निशिकांत दुबे बोल रहे थे। निशिकांत दुबे जब बोल रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पर खुद गृह मंत्री अमित शाह उठते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की सिर्फ चिंता क्या आप ही करेंगे, हम अपनी बहनों की चिंता नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो लगातार ये कह रही है कि इसको जल्द से जल्द यानी कि इसी जो 2024 के लोकसभा में इसको लाया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा होगा और बीजेपी को फायदा होगा। 3 राज्यों में चुनाव है, हालांकि जो 3 राज्य हैं उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कांग्रेस चाहती है और खुद सोनिया गांधी ने जिस तरीके से सदन में बोला वो चाहती है कि 2024 में आ जाए। हालांकि सरकार का जो एजेंडा है वो 2027 का है कि 2027 तक आएगा, क्योंकि जनगणना करनी पड़ेगी, उसके बाद परिसीमन देखना पड़ेगा कि परिसीमन में कौन कौन सी सीटें हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर एक कमेटी भी बनाई जाएगी और परिसीमन पर काम किया जाएगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोकसभा है जो 2-2 7-7 से विधानसभा से ऊपर हैं, उनको कैसे किया जाए। उसके बाद क्योंकि मामला कहा जाए कि असेंबली में भी जाएगा, तो जिस तरीके से जो राज्यों के विधानसभा है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या जो तकनीकी है वो क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि लेकिन इसमें दीपक एक चीज और बताइएगा, सोनिया गांधी बोल रही थी और उन्होंने बिल का समर्थन भी किया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बिल जो है वो राजीव गांधी लेकर आए थे, ठीक है, वो तो क्रेडिट की बात है। लेकिन इन सब के बीच हम ये समझें, सोनिया गांधी बोल रही थी, इसका मतलब INDIA गठबंधन बोल रहा था, क्या ये माना जा सकता है? देखिए ये तो अभी कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने खुद राजीव गांधी का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस की होड़ लेने की इसमें आगे है, क्योंकि वो चाहती कि हम इसका लें, क्योंकि इससे पहले जो INDIA जो विपक्ष का पूरा खेबा है वो पहले साथ में नहीं था, अलग अलग था और राजीव गांधी उस टाइम लेके आए थे। तो इस बार और पिछली बार के और इस बार के मामले में बहुत फ़र्क है। हालांकि देखिए कल एक तरफ अगर बात की जाए तो देखिए एक तरफ मीनाक्षी लेखी के आवास पर महिलाओं का जमावड़ा होता है, जो जब बिल पेश होगा तो महिलाएं अंदर जाएंगी, और बीजेपी ने इसके लिए तैयारी भी की थी और केंद्र सरकार ने भी तैयारी की थी। हालांकि इस पूरी तैयारी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। उसके बाद कल देखिए कि कल जब बिल आया तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का जो हुजूम था वो था, आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी कि ये बिल जो है वो हम लेके आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि होड़ तो लगी है, पर अब इसमें देखना होगा कि जो INDIA है वो सपोर्ट में किस तरीके से कांग्रेस में आ रहा है कि वो अलग तरीके से एक तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बिल के सपोर्ट में तो सभी लोग हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अलग पार्टियां हो, खुद कांग्रेस भी इस बिल को सपोर्ट करती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिल तो पारित होगा ही, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। बस अब इंतजार है कि जब ये पास होगा तो इसका श्रेय कौन लेता है, केंद्र सरकार या फिर INDIA गठबंधन या कांग्रेस। नहीं तो ये तो सवाल ये भी पूछे जाएंगे ना कि आखिर जब बिल पे सभी लोग राजी ही थे तो फिर आज तक ये बिल पास हुआ क्यों नहीं? क्योंकि 96 से ये बिल एक तरीके से अटकता रहा है। 96 में, उसके बाद फिर जब वाजपेयी सरकार थी कई बार इसे लाया गया, फिर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी उस समय भी कई बार लाया गया। तो फिर इसे रोका किसने और ये अटका क्यों? ये भी तो सवाल पूछा ही जाएगा। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आज तक आप कर क्यों नहीं पाए। बिल्कुल। और देखिए जब निशिकांत दुबे ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस बिल को लेके आए। और देखिए कोई भी बिल आता तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, जाहिर सी बात है कि इस इच्छा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और इसको लेके आए। क्योंकि पिछली सरकारों में भले आप सदन पर लेके आए पर उसको पारित नहीं करवा पाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां होंगी और उन कमियों को आप भुला नहीं सकते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी लेके आई इस बिल को, और इस बिल को अगर वो पास कराती है तो जाहिर सी बात है कि उसका श्रेय तो उसी को जाएगा। हालांकि कांग्रेस के जो एक सेकंड आपको रोक रहा हूं दीपक, एक बड़ी खबर आपको बता दें। महिला आरक्षण को लेकर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटती है, ये कहा है निशिकांत दुबे ने।
हम बिल लाए तो कांग्रेस को पेट में दर्द, बिल तुरंत अमल पर लाया जाए। ये देश संविधान से चलता है, राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस अपने टाइम पर बिल क्यों नहीं लाई? आरक्षण पर राजनीति करना गलत, विपक्ष नहीं चाहता महिलाओं को आरक्षण मिले। तो देखिए, निशिकांत दुबे सोनिया गांधी के बोलने के बाद बोल रहे थे सदन में, और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला कि आज तक आपने इस बिल को क्यों नहीं लाया और क्यों नहीं पास करवाया। और आज किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे मां पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी मां आज एम्स देवघर में भर्ती है सर। उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहां मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी चलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण के समर्थन में अब नीतीश कुमार उतर आए हैं। हम शुरू से महिला आरक्षण बिल की मांग कर रहे, हमने महिलाओं के हित में सबसे पहले काम किया। तो देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो अब शुरू हो गई है। नीतीश कुमार समर्थन में भी आए हैं और उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के हित में सबसे पहले काम किया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आज सामने आया है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है कि सब पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप चलिए याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है
यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। और अगर आपने शुरू करा होता, अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल। आज इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं बीएस मेंबर हो पारी एवं नारी आगो को बढ़ी सर। जिते माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जिते मुख्यमंत्री ग्रहण कले से सर से 50% संरक्षण व्यवस्था त्रिस्तरीय निर्वाचन में करते। आज देखु 50% संरक्षण व्यवस्था ऊर्धरे जाई आज नारी माने आज त्रिस्तरीय निर्वाचन में निर्वाचित हो आसी। प्रथम करी सर 2019 मसीह माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 33% संरक्षण व्यवस्था लोकसभा आगत करते। सबू राज्य मानक से समस्त को अनुरोध करते, केंद्र सरकार को मध्य से अनुरोध करते 33% संरक्षण बिल पार्लियामेंट रे आनिया पई। एवं आमे सर 7 जन महिला आज 5 जन महिला आज आमे ओडिसा रो आसी परिछु एवं यहाँ निश्चित भाव में आमे आम दल प्रति गोटे बहुत बड़ इतिहास कहले रचिछंती कहले अत्युक्ति हेब नहीं सर। आज आपण माने देखिबे सर। तो इस समय लोकसभा में चर्चा चल रही है महिला आरक्षण बिल पर। हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, अब देखिए चर्चा तो चल रही है, पार्टियां इफ बट के साथ समर्थन में दिख रही हैं और साथ ही साथ कोशिश ये है कि इसका क्रेडिट हमें मिल जाए, इसकी होड़ लगी है। देखिए बिल्कुल क्रेडिट वार जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी अभिषेक हमारे पास एक बड़ी जानकारी आई है जो सुबह इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि जब महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगी तो वहाँ पर सभी इंडिया गठबंधन दल के वोट हैं वो इसके पक्ष में डलेंगे, यानी कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में इंडिया अलायंस वोट डालेगा। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया अलायंस की बैठक में एक बात और डिसाइड की गई है कि सरकार के सामने तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, इंडिया अलायंस के सांसद हैं, वो ये मांग रखेंगे कि इस बिल को साल 2024 में ही लागू किया जाए। ये बड़ी जानकारी इंडिया अलायंस की बैठक से निकल कर आई। लेकिन नमित, अब तो जो बिल है, इस समय पटल पर जो बिल रखा गया है उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि 24 में ये लागू होगा, तो उसकी संभावना तो क्लियर है कि वैसा पॉसिबल ही नहीं है। बावजूद इसके वोट तो करना ही होगा अब समर्थन में, ये क्लियर है। देखिए इसके पीछे भी अभिषेक
देखिए बिल्कुल अभिषेक, इसके पीछे भी दो पहलू हैं। कुछ देर पहले सोनिया गांधी ने जब संसद के अंदर अपनी बातें बोली, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तो राजीव गांधी का सपना था और राजीव गांधी का सपना अभी अधूरा पूरा हुआ है, क्योंकि तब तक ये लागू नहीं होगा तब तक इस सपने को पूरा नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि खुद देश के अंदर जो स्त्री होती है यानी कि माँ होती है वो सबसे ऊपर होती है, तो ऐसे में माँ को जो है अब बराबर लाने का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। हालांकि उसके बाद तुरंत जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कांग्रेस की जो सोनिया गांधी ने बातें बोली उस पर पलटवार किया और सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने कई सालों से इस बिल को लटका कर रखा था। इसके साथ साथ निशिकांत दुबे ने उस बात का भी कांग्रेस के जवाब दिया जब कांग्रेस के तभी सभी सांसद ये कह रहे थे कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए, तो निशिकांत दुबे ने कहा कि आर्टिकल 82 ये कहता है कि क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको एकदम से लागू नहीं किया जा सकता, इसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसी के तहत इसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल, तो क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं कि पार्टियां इफ बट के साथ समर्थन में आ रही हैं, वहीं एक बड़ा बयान नमित नीतीश कुमार का भी ये आया कि हम तो पहले ही से कह रहे थे कि महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। तो साथ ही बिल का समर्थन भी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कर दिया। तो यानी कि हर कोई तो ये कह रहा है कि हाँ हम तो चाहते ही थे, हम तो चाहते ही थे, हम तो चाहते ही थे। तो चाहते थे तो फिर आज तक हुआ क्यों नहीं? देखिए दरअसल अभिषेक, जैसा सुबह मैं जिक्र कर रहा था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मोदी सरकार ने धर्म संकट में जरूर फंसा दिया था। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव भी हैं और कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में इस बिल का समर्थन तो विपक्ष को करना ही था और जब वोटिंग होगी तो विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा भी। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर तय है कि इस बिल के पास होने के बाद जो माइलेज है यानी कि जो फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की बात है वो बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि निशिकांत दुबे ने इस बात को भी अपनी बात में कहा कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बिल को हम लेकर आए थे साल 2010 में, हमने पटल पर रखा था, लेकिन आपने लागू तो नहीं किया ना। जो उस मैच में आखिरी गोल करता है श्रेय उसी का होता है, यानी कि उनका निशिकांत दुबे का सीधा सीधा इशारा था कि बीजेपी इस बिल को पास कराकर पूरा इसका श्रेय जरूर लेना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के कल से जो महिला सांसद हैं उनकी तरफ से भी लगातार इसी तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं कि अब आखिरकार आकर जो हमें हमारा अधिकार है वो मिलना शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी दो बातें मैं क्लियर कर दूं अभिषेक। पहला तो ये कि अगर ये बिल जो है पास हो जाता है उसके बाद जब लागू होगा उसमें काफी 2-3 साल लग जाएंगे। उसके बाद भी एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, मायावती इस समय बोल रही हैं, सुनवाते हैं। से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन
11 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं इसको लागू करने से पहले, जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। यानी कि जो पहले से इनको SC/ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC/ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC/ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC/ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफ़ी पिछड़ी हैं। जबकि महिलाओं के मामले में वास्तव में सच्चाई तो ये है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं, जनरली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, तो वे अधिकांश हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही मिले, जिसे उस समय कांग्रेसी सरकार ने इसे पूरे तौर से पास नहीं होने दिया था, जिसे फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इतना ही नहीं,
बल्कि इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार द्वारा लाए गए बिल में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण उस दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इस पार्टी के भी नेता, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता, इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नीयत साफ नहीं है, और ये सभी पार्टियां इसकी आड़ में केवल इनका वोट हासिल करने के लिए अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए देश की महिलाएं ऐसी सभी पार्टियों से जरूर सावधान रहें जिनसे इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मायावती को महिला आरक्षण बिल पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। साफ नियत से बिल नहीं लाया गया है। देखिए, बिल साफ नियत से नहीं लाया गया है, अभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आरक्षण मिलने में वक्त लगेगा। सरकार तुरंत आरक्षण देने का रास्ता निकाले। महिला आरक्षण बिल पर ये बातें मायावती ने कही हैं। नमित हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नमित, आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। अब देखिए, बिल की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिल लाया तो गया है, लेकिन आरक्षण मिलने में तो समय लगेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनसे गुजरने के बाद ही जाकर के महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। कुछ ऐसा किया जाए कि अभी के अभी आरक्षण मिल जाए, ये मांग की जा रही है मायावती की तरफ से भी। देखिए, बिल्कुल मायावती ने जो बातें कही अभिषेक, उसमें एक बात आपने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ की वजह से इस बिल को लाया गया है। ये बहुत बड़ी बात मायावती ने बोली है, जिस बात को लगातार कल से विपक्षी पार्टियां भी बोल रही थी, उसी बात को मायावती ने भी बोला। और उन्होंने दो बातें और बोली। पहला ये कि महिला आरक्षण में जो SC ST को अभी तक जो आरक्षण मिलता था, उससे इतर यानी कि उससे अलग हटकर ये 33% आरक्षण वो चाहती हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने कहा। और जिस सूबे से मायावती आती है, वहां पर 403 सीटें विधानसभा के अंदर है, उसमें अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो 132 सीटें महिलाओं की हो जाएगी। और ये इतना आसान होगा नहीं। और मायावती ने उस बात का भी जिक्र किया कि इसको लागू जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर इसको लागू नहीं किया गया तो ये केवल एक राजनीतिक लाभ के लिए लाया जाने वाला बिल कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात मायावती कर रही हैं, उसी बात को कल से कई विपक्षी दलों के नेता गाहे जो चाहे कैमरे के सामने या फिर कैमरे के पीछे बोलते जरूर आ रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों की मजबूरी है इस बिल को समर्थन करना, क्योंकि मायावती ने अपनी आखिरी लाइनों में यह कह दिया। नमित, आपके पास आते हैं, इस समय लिए चलते हैं राज्यसभा कि साइंटिफिक लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट होता है। इसरो के लिए, इसरो को जो लीडर मिले विक्रम साराभाई के रूप में और होमी भाभा के रूप में, उनके साइंटिफिक लीडरशिप ने भी जो नींव का पत्थर रखा, उसके कारण इसरो आज यहां तक पहुंची। आप एक चीज और देखिए, वर्क कल्चर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उस इंस्टीट्यूशन का वर्क कल्चर सही है तभी इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। अगर वर्क कल्चर खराब हो गया तो चाहे आप चले जाओ, मैं चले जाऊं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चला जाए, ना उसको इधर कर सकता है ना उसको उधर कर सकता है। वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। तो वर्क कल्चर में ऐसा क्या हुआ इसरो में? इसरो में जहां तक मेरी थोड़ी समझ है, मेरे कई सारे मित्र भी वहां पे काम करते हैं, वहां पर डिलीवरी बेस्ड टारगेट्स होते हैं। डिलीवरी बेस्ड टारगेट होते हैं, वहां पर मेरिटोक्रेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाई, आप साइंटिस्टों की जब भर्ती करते हो, साइंटिस्टों को लेते हो, तो जिस तरीके से आप उनकी भर्ती करते हो, जो मानसिकता है वो आधार बनाती है। तो इसरो की जो वर्क कल्चर है वो बहुत सर्वोत्तम है हमारे देश में। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो जान गए कि इसरो का ठीक है, लेकिन क्या उस वर्क कल्चर को दूसरी संस्थाओं में लाने का हमने प्रयास किया है? क्या हमने कभी ऐसी कमेटी बनाई है कि हम बाकी के दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो क्यों फेल हो रही है,
मैं फेल हो रही है नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आप उम्मीद से कम परफॉर्म करते हो तो हमें उसको फेल मानना पड़ेगा। क्या आपने ये सोचा है कि हमारे देश में कितने सरकारी रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है, उसको कितनी फंडिंग जाती है, और फंडिंग के हिसाब से कितने साइंटिस्ट है, क्या आउटपुट है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आउटपुट बिल्कुल जीरो है, फिर भी वो चले जा रहा है। सरकारी, हमारे गांव में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है। आप पूछोगे कि भाई सरकारी नौकरी में क्या है, तो वो कहते जी वहां काम करना नहीं पड़ता है। मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है मैं कई लोगों से, आप मेरे से असहमत हो, लेकिन सरकारी संस्थाओं की यह परिस्थिति हो गई है कि उसको अब ऐसा जगह माना जाता है कि वहां पे काम करना नहीं पड़ेगा। अगर सारे इंस्टीट्यूशन के वर्क कल्चर को ठीक नहीं किया गया समय रहते, तो यह मानना कि भारत विकसित होगा वो एक दिवा स्वप्न होगी। और सिर्फ भाषण से, सिर्फ किसी के भी, मेरे से भी, मैं राजनीतिक दलगत में उतरकर इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को विशिएट नहीं करना चाहता हूं। आप वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आईआईटी में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी में पढ़ने के बाद मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, मैं भी साइंटिस्ट था। साइंटिफिक जो फंडिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं मान सकता हूं कई सारी परिस्थितियां होंगी अलग अलग, वही तो लीडरशिप का परिचायक होता है। जब आपको कष्ट होता है, जब आपके पास कम पैसे होते हैं, तो कम पैसों में आप किसको कितना फंड करते हो और आपकी प्रायोरिटी क्या है, वही दर्शाता है कि लीडरशिप क्या है। जब आपके पास पूरे पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो सबको बराबर बांटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न यही उठता है कि हम साइंटिफिक फंडिंग्स को धीरे धीरे क्यों काटते जा रहे हैं? हमें बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठाना पड़ेगा कि कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, इन सब पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम बार बार ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं भी था विदेशों में 9.5 साल, 10 साल तक मैं बाहर था। मेरे मस्तिष्क में ये क्लियर था कि मुझे भारत में आना है और जो मर्जी हो जाए मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। लेकिन मेरे से भी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो विदेशों में रुके। उनमें से कई वापस आए, कई वापस आके चले गए। चेयरमैन सर वापस आके चले गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप विदेश से अच्छी पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन के यहां आते हो, साइंटिस्ट बनने के बाद आप क्या चाहोगे? भाई उसे लेबोरेटरी चाहिए। बिना लेबोरेटरी के साइंटिस्ट वैसे ही होता है जैसे बिना पानी के मछली और बिना भाषण का नेता। साइंटिस्ट को आप 2-2, 3-3 साल बिना लेबोरेटरी के अगर आप छोड़ दिए, तो साइंटिस्ट 2 साल में उसके काम करने की चेष्टा, उसकी सारा साइंस सब धरा का धरा रह जाता है। फिर 2 साल के बाद वो एक सरकारी नौकर बन जाता है। 2 साल बाद सिर्फ उसकी ये टेंशन रहती है कि मेरे को नौकरी कैसे बचानी है, प्रमोशन कैसे मेरा हो जाए, जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके काम कर लो, काम करके भाई प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह तो फिक्स है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा हूं। चलिए एक बार फिर से सहयोगी नमित के पास चलते हैं। नमित, आपसे अब एक चीज ये भी समझना चाहेंगे। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, खास करके विपक्षी दल, ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं है, बिल जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है। तो कोई भी पार्टी हो, वो राजनीतिक पार्टी अगर है तो वो राजनीति तो करेगी ही, इसमें कहां संशय है। अगर सत्ता पक्ष इस बिल को लेकर के आई है और इसे पास करवाती है, आज नहीं तो कल ये लागू तो हो जाएगा, लेकिन इससे पॉलिटिकल लाभ क्यों नहीं उठाए, ये भी तो सवाल होगा। देखिए, ये तो हम देखते आए हैं कि जिस पार्टी के पास पावर होती है उस पावर का यूज़ करती है और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भी उठाना चाहेंगी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। और फिलहाल मौजूदा समय में बीजेपी के पास बहुमत है, तो निश्चित तौर पर वो इस बिल को पास कराकर कई राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहाँ पर माइलेज लेने की कोशिश ज़रूर करेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का अपना अपना तर्क है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बात पर जो है वो ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जब ये बिल पास हो जाएगा तो वो कोई रास्ता नहीं है कि इसे 2024 में लागू किया जाए, क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा संविधान को बदलना पड़ेगा और वो इतना आसान होगा नहीं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो। हालांकि कुछ देर पहले मैं टीएमसी के सांसद काकोली घोष को सुन रहा था, उन्होंने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। अभिषेक, उन्होंने पहला ये कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं एज ए टीएमसी की सांसद होते हुए, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहले से ही महिला आरक्षण जो है वो पहले से ही लागू है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अभी तक
पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और बीजेपी पर तंज भी कसा टीएमसी सांसद ने कि 16 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है लेकिन किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री महिला नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कई आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने कहा कि जितनी भी देश के अंदर राज्य सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो महिला विधायक केवल पश्चिम बंगाल के अंदर है। कैबिनेट मंत्री सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो विपक्षी पार्टियों को जब जब इस पूरी चर्चा के दौरान बोलने का मौका मिल रहा है वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं और इस पूरी चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर सियासत कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। लेकिन नमित, इन सब के बीच एट द एंड ऑफ द डे अगर कहें तो ये बिल पास होता नजर आ रहा है, क्योंकि आप इसमें इब्बट कर सकते हैं, आप इसमें मंशा पे सवाल उठा लें या कुछ भी कर लें, आखिर में आप समर्थन में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है। अगर वहां पर विपक्षी पार्टियां विरोध करने की सोचेंगे भी तो भी वहां पर यह बिल रुक नहीं पाएगा। दूसरा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर भी हमने देखा था जब दिल्ली सेवा बिल लाया गया था तो उस दौरान ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ये बिल रुक जाएगा। हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया लेकिन वहां पर दिल्ली सेवा बिल भी पास हो गया। तो ऐसे में तो अब खुले तौर पर भले ये जो पार्टियां हैं वो इसमें संशोधन की बात कर रही हों या फिर इसमें कुछ मांग कर रही हों, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे। तो ये तो क्लेरिफाई है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास करा दिया जाएगा। जहां तक रही कि इसको लागू करने को लेकर, उसमें तो काफी लंबा समय निकल जाएगा और इस बिल को पास कराने के बाद कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा और कितना घाटा इंडिया अलायंस को उठाना पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2020 நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். And if there was an iota of politics, it would not have been so. It would have been otherwise. He is not a dynast. He is not there by virtue of being a member of any family. He is there and he doesn't even